Good afternoon, dear students. Today we'll be studying lecture 3 of Unit 5 of your subject BEEE, whose subject code is BT104. So today we'll be discussing the logic gates and Boolean laws. As you have already studied the logic gates in 12th class, so we'll be quickly revising it. So a logic gate is an electronic circuit which performs the particular logic operations. It could be logic AND, logic OR, NOT, etc. etc. So there are three categories in which logic gates has been divided. As you can see here, logic gates are divided in three categories. One is basic gate, second is universal gate, and third is exclusive gate. And these classification is further categorized, like basic gates are AND gate, OR gate and NOT gate. Universal gates are NAND gate and NOR gate. And exclusive gates are XOR and XNOR. या इसको हम exclusive OR गेट या सेवेंथ वाले को एक्सक्लूसिव नॉर गेट कह सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द एंड गेट. इसके ऑपरेशन को समझेंगे, इसका सिंबल क्या है, लॉजिक ऑपरेशन क्या है, ट्रूथ टेबल क्या है, ये सारे गेट्स के लिए हम देखेंगे. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द एंड गेट. The AND gate has two or more input signals but only one output signal, and the output signal is high only when all the input signals are high. This could be explained by the truth table. ये हमारा AND gate का symbol है. That means here we are having two inputs A and B and we are having a output Y. Y output हमको कैसे मिलेगा? We will be getting it by multiplying it. That means both the inputs are multiplied to give the output. Output is denoted by Y. So this is the logic operation. Y is equals to A dot B. अब ट्रूथ टेबल देखते हैं. यहाँ पे here we are having two inputs A and B and Y output. So it is being explained by the help of binary multiplication. So let's check it. First case we are having both the inputs as 0, so 0 dot 0 is equals to 0, and in second case we are having A as 0 and B as 1, so 0 dot 1 will be 0. Similarly 1 dot 0 will be 0 and 1 dot 1 multiplied by 1 will be giving you the 1. So here is the output of the truth table. इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, the output is high only when all the input signals are high. High means 1 and low means 0. इसको ध्यान में रखना है. 0 को हम low भी कहते हैं, off भी कहते हैं, 1 को हम high भी कहते हैं और on कहते हैं. तो यहाँ पे as it is clearly visible that 1 will be having or high will be having only when all the inputs are high. So here it has been, the statement has been proven. Similarly we'll be studying the next gates. So second one is OR gate, and this is the symbol of OR gate, and this is the logic operation A plus B. Both the inputs are being added to get the output Y. So the इसकी खास बात यह है, characteristic ये है, if any one input signal is high, the output signal is high. So let's see the truth table and verify the statement. A and B are the input, Y is the output. 0 plus 0 will be 0, 0 plus 1 would be 1, 1 plus 0 would be 1 and 1 plus 1 would be 1. So यहाँ पे हमारा जो statement है वो proof हो रहा है that if any on one of the input signal is high, high means 1, the output signal is high, as we can see here. So this is all about the OR gate. Now next come to the NOT gate. NOT gate को हम inverter signal भी बोलते हैं. It has only one input signal and one output signal. The output state is always opposite of the input state. That means it converts the logic 1 to logical 0 and logical 0 to logical 1, whichever has been the given as the input. So here is the symbol of NOT gate. So here we are having a triangle along with this bubble. So this is showing NOT gate, and output expression is y is equals to NOT of a. That means a bar, ये ऊपर जो लगा हुआ है जिस तरीके का, ये a के ऊपर बार लगा हुआ है. So if 0 has been given, 0 का बार 1 होता है, 1 का बार 0 होता है. तो in this way we can calculate. Truth table is very easy. यहाँ पर दो ही इनपुट है,
सॉरी, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है. ए इज द इनपुट, वाई इज द आउटपुट. व्हेन इनपुट इज 0, आउटपुट इज 1. व्हेन इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0. नाउ नेक्स्ट कम टू दी नॉर गेट. नॉर गेट और नैंड गेट दोनों जो है वो यूनिवर्सल गेट की कैटेगरीज में आते हैं. एंड और नॉट जो है वो बेसिक गेट्स थे. नॉर गेट जो है वो दो गेट से मिलके बनता है. एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट. यहाँ पे हियर you can see that here is the OR gate and this is the NOT gate. So OR plus NOT will give you the NOR. और इसका combinedly symbol हम बनाएंगे. तो जैसे हम NOR gate बनाते थे उसी में यहाँ पे हमने OR gate बनाते थे, वैसे ही OR gate के साथ में हमने एक बबल ऐड कर दिया तो ये बन गया NOR gate. इसका एक्सप्रेशन, OR gate का एक्सप्रेशन होता था a प्लस बी. अब क्योंकि इसके आगे हमने एक इन्वर्टर लगा दिया यानी कि नॉट गेट लगा दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी का होल बार. सो हियर वी कैन सी द ट्रूथ टेबल. दो इनपुट हैं ए बी, चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. a प्लस बी हमको मिला था 0 1 1 1. ये आउटपुट जो है वो और गेट का था. अब इसको इन्वर्ट कर देंगे फाइनल नॉर गेट के आउटपुट के लिए तो ये हो जाएगा 1 0 0 0. एंड सिमिलरली नैंड गेट जो है, नैंड गेट बना हुआ होता है एंड गेट से और उसके आगे हम एक नॉट गेट लगा देते हैं तो ये बन जाता है y इज इक्वल्स टू a डॉट बी का होल बार. एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो था a डॉट बी और यहाँ पे एक नॉट आगे लगा दिया तो ये हो गया a डॉट p का होल बार. ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन है. यहाँ पे ट्रूथ टेबल मिलेगी. अगेन टू इनपुट्स, फोर कॉम्बिनेशंस और 0.0 will give you 0 and its inverter will give you 1. And similarly all the three cases others will be discussed here in this truth table. और ये इसकी एक खास बात है, नॉर और नैंड गेट जो है इसको हम यूनिवर्सल गेट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ दीज गेट्स एनी ऑफ द लॉजिक गेट्स कैन बी जनरेटेड. दैट मीन्स बाय कनेक्टिंग NAND gate and NAND gate and NAND gate and NAND gate we can form any kind of gates. मतलब सिर्फ NAND gate की हेल्प से, कनेक्शन से हम बाकी सारे गेट्स बना सकते हैं. इसी तरीके से नॉर 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 सारे नॉर गेट्स को कनेक्ट करके अलग अलग तरीके से हम सारे गेट्स बना सकते हैं. तो वो हम फर्दर देखेंगे बाद में. अभी हम नेक्स्ट गेट के लिए जाते हैं. अब जो नेक्स्ट टू गेट्स बचे हैं उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट्स, सॉरी एक्सक्लूसिव गेट्स. नैंड और नॉर वर यूनिवर्सल. नाउ 6 and 7 आर दी एक्सक्लूसिव गेट्स और एक्स गेट्स. तो ये जो 6 1 इज द एक्सक्लूसिव और, इसको हम एक्स और भी कहते हैं. एक्सक्लूसिव और गेट की खास बात यह है दैट इट हैज़ अ हाई आउटपुट व्हेन एन ऑड नंबर ऑफ इनपुट इज हाई. मतलब ऑड नंबर कैन बी 1 3 5. तो जितने भी इनपुट होंगे उनमें से अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई है तो आउटपुट वुड बी हाई, अदरवाइज इट वुड बी लो. सो एक्सक्लूसिव और गेट का जो सिंबल होता है, डायरेक्ट सिंबल ये है. और इसका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए. इसको हम ए एक्सॉर बी ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं और इसको इलाबोरेट करेंगे तो ये होता है ए बार बी प्लस ए बी बार. ये एक्सॉर गेट का आउटपुट है, ये इसका प्राइमरी सिंबल है. और ये बना कैसे, तो इसकी डिटेल्स देखने के लिए हम यहाँ जा सकते हैं. ये और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है एक्सक्लूसिव और गेट का. इसमें दो एंड गेट लगे हुए हैं, दो नॉट गेट लगे हुए हैं और एक और गेट लगा हुआ है. सिमिलरली आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ए को हमने एक नॉट गेट, यहाँ पर ए के साथ एक नॉट गेट लगाया, ए बार बन गया. यहाँ बी के साथ नॉट गेट लगाया, बी बार बन गया. अब ये एंड गेट जो है इसमें हमने आउटपुट इनपुट दिया ए बार और बी का तो ये ए बार डॉट बी मिल गया क्योंकि एंड गेट का में दो इनपुट दिए जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सिमिलरली यहाँ पे जो एंड गेट है वो हमको आउटपुट देगा ए डॉट बी बार. अब उन दोनों को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए और गेट चाहिए तो यहाँ पे हमको फाइनल आंसर जो है ये मिल जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार. इसको ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं हम. यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल में ए बी ए बार बी बार ए बार डॉट बी और ए बी बार दो सब सारे लिए हुए हैं. अब ये जो लास्ट के टू कॉलम्स हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको ये एक्सॉर का आउटपुट मिल जाएगा. सो 0 + 0 इज 0, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1 एंड 0 + 0 इज 0. तो ये हमको मिल गया एक्सक्लूसिव और गेट. एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है उसमें हम बस एक बबल लगा देते हैं या एक नॉट गेट लगा देते हैं.
यहाँ पे एज यू कैन क्लियरली सी एक्सॉर में हमने एक नॉट गेट ऐड कर दिया तो हमको एक्स नॉर मिल गया। तो जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आप ए एक्सॉर बी का सिंबल जो है वो बनेगा ए एक्सॉर बी का होल बार, होल इन्वर्जन। तो यहाँ पर ए एक्सॉर बी और एक ए एक्सॉर बी का होल बार। तो ए एक्सॉर बी था 0 1 1 0, तो ए एक्सॉर बी का होल बार हो जाएगा 1 0 0 1। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गेट्स। ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि लॉजिक गेट्स बनाइए, डिफरेंट टाइप के, कौन कौन से टाइप के होते हैं अलॉन्ग विद सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। दिस वुड बी वेरी इजी एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। नाउ लेट्स कम टू द बुलियन रिलेशंस। ये बुलियन रिलेशंस भी आप मोर और लेस कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं अपने स्कूल सिलेबस में या मैथ्स के सिलेबस में प्रीवियसली। सो हम इसको एक क्विक रिविजन करेंगे। दे आर बेसिकली 7 मेन टाइप्स ऑफ बूलियन रिलेशंस जो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में वी कैन राइट a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए एंड a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। एसोसिएटिव लॉ में हम इसको इस तरीके से करते हैं। एसोसिएटिव लॉ a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c वुड बी ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c इज इक्वल्स टू y, एंड सिमिलरली द end operation will take place like this. A dot bracket में b plus c is equal, b dot c is equals to a dot b in brackets would be multiplied by c. This is the output. Third one is distributed law. Distributive law is a dot b plus c could be written as a dot b plus a dot c. Then there are absorption laws. 4 absorption laws are there. A plus a dot b is equals to a dot a plus b is equals to a plus a bar dot b is equals to a plus b, and a dot a bar plus b is equals to a dot b. ये हो गए आपके एब्जॉर्प्शन लॉज। देन कम्स और ऑपरेशन। और ऑपरेशन मतलब ऑरिंग में हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। तो यहाँ पे सारी एडिंग है। a प्लस 0 विल गिव यू a प्लस a विल गिव यू a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड a प्लस a बार इज इक्वल्स टू 1। देन एंड ऑपरेशन जिसमें मल्टीप्लिकेशन आता है। एंड के ऑपरेशन a डॉट 1 इज इक्वल्स टू a dot a is equals to a dot 0 is equals to 0, and a dot a bar is equals to 0. And the last is double inversion. Double inversion means here we can see a bar का bar हो जाएगा a, that means a bar to the bar is equals to a again, that is complement of a complement is the same number. That means 0 है, अगर suppose हमारा a 0 है, 0 को हम complement करेंगे एक बार तो क्या आएगा 1. that 1 if would be again complemented, then it would be given you the 0, that means the same number. So this is the double inversion. So this is all about the today's class. In next class we will discuss De Morgan's theorem and adders. Thank you.